إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ کثیرا، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کرو بہت زیادہ، اور اس کی تسبیح بیان کرو صبح شام۔ ذکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بہت بڑی چیز ہے، ذکر کے بڑے فائدے ہیں۔ آپ نے سنا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سنو اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ دل ہمارا پریشان ہوتا ہے، ہم شکوہ کرتے ہیں، ہمیں یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہمارا دل پریشان ہے، ہم رنجیدہ ہیں، غمزدہ ہیں، پریشان حال ہیں، مصیبتوں میں جھلے ہوئے ہیں، مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ لیکن ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو اگر نجات دلانا چاہتے ہیں تو نجات کہاں ملے گی؟ وہ نجات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذکر سے ملے گی۔ دل پریشان ہوتا ہے تو دل کو خوش کرنے کے لیے، دل کو سکون حاصل دلانے کے لیے وہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر ہے۔ اور کتنا کرنا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اذکروا اللہ کثیرا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کرو بہت زیادہ۔ تو ہم اور آپ صبح شام کے اذکار بھی پڑھتے ہیں، دیگر دوسرے اذکار پڑھتے ہیں، نماز کے بعد کے اذکار پڑھتے ہیں، لیکن ان تمام اذکار کے پڑھ لینے کے بعد بھی ہمارا دل مطمئن نہیں ہوتا ہے، ہمیں سکون نہیں ملتا ہے، ہمیں اطمینان نصیب نہیں ہوتا ہے، پھر بھی ہم پریشان ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو ذکر ہے وہ بے اثر ہے، ہم جو ذکر کر رہے ہیں اس میں تاثیر نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارا ذکر تاثیر سے خالی کیوں ہے؟ آئیے چند وجوہات ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہمارا ذکر تاثیر سے خالی کیوں ہوتا ہے۔ ہم صبح شام کے اذکار بھی پڑھتے ہیں، دیگر دوسرے ٹائم میں اذکار پڑھتے ہیں، فرض نماز کے بعد کے اذکار پڑھتے ہیں، پڑھ لینے کے بعد بھی ہم اسی طرح ہیں جس طرح نہ پڑھنے سے پہلے تھے۔ وجوہات کیا ہیں؟ آئیے سب سے پہلی وجہ یہ ہے عدم محبت، کہ ذکر سے ہمارا محبت نہیں، ہم اس سے محبت نہیں کرتے ہیں۔ کسی چیز سے جب تک محبت ہوتی ہے، لگاؤ ہوتی ہے، جب تک ہمارا اس سے تعلق گہرا ہوتا ہے، جب ہمیں اس سے مزہ آتا ہے۔ ہم ذکر کرتے ہیں لیکن
यूं ही बस हमें करना होता है हम करते हैं, पढ़ना होता है पढ़ते हैं, उससे कोई लगाव नहीं, कोई मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत होगी तब जाकर के उसका असर हमें दिखेगा, मोहब्बत होगी तब जाकर के हमारा दिल इत्मीनान होगा, हमें सुकून नसीब होगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बयान फरमाया वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, कि वो लोग जो ईमान लाए हैं वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए बहुत ही सख्त मोहब्बत करते हैं, बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करते हैं। तो जिक्र, अल्लाह के जिक्र में मोहब्बत होनी चाहिए, उल्फत होनी चाहिए, उनसियत होनी चाहिए और लगाव होना चाहिए, तब जाकर के ये जिक्र हमारा असरदार होगा। इसी तरीके से दूसरी चीज अदम फहम, ना समझी। जो जिक्र हम कर रहे हैं उस जिक्र को हम समझते नहीं हैं, जो अल्फाज अपनी जबान से अदा कर रहे हैं उसे हम नहीं समझते हैं। हम बड़े शौक से ये जिक्र, ये अज़कार जो नमाज के बाद के अज़कार हैं वो याद है तो पढ़ लेते हैं, लिखा हुआ सामने है देख कर पढ़ लेते हैं, किसी भी तरह पढ़ने की कोशिश करते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन क्या पढ़ते हैं हमें पता नहीं चलता, उसके मानी और मफाहिम हमें नहीं मालूम है। हम कहते हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर का माना क्या है नहीं मालूम, कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह, नहीं मालूम क्या है अस्तगफिरुल्लाह का मतलब। इसी तरीके से हम पढ़ते हैं दिगर दूसरे अज़कार, सुबह शाम के अज़कार भी पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं सय्यदुल इस्तिग़फ़ार भी, और इस्तिग़फ़ार का सरदार भी पढ़ते हैं, कहते हैं अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता खलक़तनी अना अब्दुका, पढ़ते हैं लेकिन नहीं मालूम हम क्या कह रहे हैं, नहीं पता कि इसके अंदर कौन सी चीज है, क्या खजाने हैं, कौन सी चीज हम हासिल करना चाहते हैं, कौन सी बात अपने रब से कहना चाहते हैं, ये कुछ नहीं मालूम है। यही वजह है कि ये जिक्र हमारा असरदार नहीं है, हमें ये फायदा नहीं देते, हम इसका फायदा हासिल नहीं कर सकते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान मजीद में बयान फरमाया अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदा, कि खड़े बैठे और हर तरीके से मोमिन क्या करते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं, व यतफक्करून, और उसमें गौर व फिक्र करते हैं, फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़, जमीन और आसमान की चीजों में गौर भी करते हैं, फिक्र करते हैं, वो समझने की कोशिश करते हैं कि ये चीज है क्या, ये बनाया किसने है, ये किस तरीके से बनाया है, आया इसका कोई बनाने वाला है, वो रब है जिसे हमें याद करना चाहिए, वो रब है जिससे हमें मांगना चाहिए। इस तरीके से उसे समझने की कोशिश करनी है। अगर हम उन अज़कार को समझते हैं, उनके मानी और मफाहिम और मतालिब को समझ कर पढ़ते हैं तो वो जिक्र असरदार होगा, और अगर हमें समझ में नहीं आता, ना ही हम समझने की कोशिश करते हैं, तो फिर वो बेअसर है, उसका कोई असर नहीं है। इसी तरीके से एक तीसरी वजह है ठहराव ना होना, यानी जो अज़कार हम पढ़ रहे हैं उसमें इत्मीनान और सुकून का ना होना, जल्दी जल्दी में अपनी जबान को चलाना। नमाज पढ़ने के बाद अज़कार शुरू करते हैं अल्लाहु अकबर अस्तगफिरुल्लाह, और बसा औकात हम अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते हैं या क्या चीज पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग इसे गलत भी पढ़ते हैं, उन्हें पता नहीं अस्तगफिरुल्लाह है या नस्तगफिरुल्लाह या कोई और फिरुल्लाह है, वो जो जैसा सुनते हैं, जो आवाज उनके जहन में आती है उसी चीज को वो पढ़ने की कोशिश करते हैं, और ये समझने की कोशिश नहीं करते, ना ही सीखने की कोशिश करते हैं कि ये चीज है क्या। इसे समझना चाहिए और इसे याद कर कर पढ़ना चाहिए, और इतनी तेजी के साथ पढ़ते हैं कि एक लम्हे में कई अज़कार पढ़ चुके होते हैं, और पढ़ने के बाद फिर वो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वाली तस्बीह भी पढ़ना शुरू कर देते हैं। इतने टाइम में, इतने जल्दी के साथ ये पढ़ने की कोशिश करते हैं। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की जो तस्बीह पढ़ते हैं उसमें भी अपनी उंगलियों को और अपनी जबान को इस कदर हरकत देते हैं, ऐसा लगता है कि कुछ पढ़ता है या नहीं पढ़ता, सिर्फ जबान को हरकत देता है, अपने होठों को हिलाता है और अपनी उंगलियों पर उंगलियों को दबाता रहता है। अगर ऐसा होगा तो फिर वो जिक्र हमारा असरदार नहीं होगा, उसमें ठहराव होना चाहिए, इत्मीनान और सुकून के साथ पढ़ना चाहिए। अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता खलक़तनी व अना अब्दुका, इस तरीके से बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ये सारे अज़कार जो आप पढ़ते हैं, तो इन तमाम अज़कार को पढ़ते हुए इत्मीनान और सुकून होना चाहिए, तब जाकर के वो अज़कार असरदार होंगे, इत्मीनान क़ल्ब का बाइस होगा।
चौथी चीज अदम कसरत, जिक्र का ज्यादा ना होना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हुक्म दिया है कि ज्यादा अल्लाह का जिक्र करो, ज्यादा औकात में अल्लाह सुब्हानहू व तआला को याद करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त कुल अहयान, हर वक्त अल्लाह का जिक्र करते थे। सोने में अल्लाह का जिक्र, सोकर उठते थे अल्लाह का जिक्र, चलते फिरते उठते बैठते अल्लाह का जिक्र, हर वक्त सिवाय उस वक्त के जब वो बाथरूम में होते अल्लाह का जिक्र अदा नहीं करते। जाते हुए जिक्र करते और निकलते हुए जिक्र करते, लेकिन वहां बैठकर नहीं करते, वहां जाकर नहीं करते। इन तमाम औकात में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जिक्र करते थे। और हम और आप अल्लाह का जिक्र कितना करते हैं? सुबह हुई या शाम हुई तो सोचते हैं कि कुछ जिक्र पढ़ लेना चाहिए, कुछ अज़कार पढ़ लेने चाहिए, अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। सलाम फेर दिया नमाज से तो कुछ अज़कार लिखे हुए हैं, लगे हुए हैं तो पढ़ लेना चाहिए, याद है तो सामने लिखा हुआ तो, और नहीं है तो कुछ भी नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो हमारा जिक्र असरदार नहीं होगा, ये जिक्र हमारा बाइसे इत्मीनान नहीं होगा, ये फिर हमें क्या होगा, हम परेशान ही रहेंगे और हमें सुकून नसीब नहीं होगा। तो सुकून हासिल करने के लिए कसरत से ज्यादा अज़कार करने होंगे, ज्यादा औकात में, ज्यादा लम्हात में इन अज़कार को पढ़ने होंगे। पांचवी चीज है अदम दवाम, पाबंदी का ना होना, लगातार और मुसलसल कंटिन्यू का ना होना। आज पढ़ ली, हफ्ता भर छोड़ दिया, आज अच्छा लगा पढ़ने में, कुरान की तिलावत करने में अच्छा लगा, पढ़ा, बैठे पढ़े जा रहे, रात हो गई, दिन के हिस्से चले गए, लम्हात चले गए, काम का वक्त हो गया, नहीं मजा आ रहा पढ़ने में, पढ़े जा रहे हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं, नवाफिल पढ़ रहे हैं और दीगर दूसरे अज़कार पढ़ रहे हैं क्योंकि अच्छा लग रहा है। और उस दिन के बाद कल अच्छा नहीं लगा छोड़ दिए, फिर अच्छा नहीं लगा छोड़ दिए, फिर अच्छा नहीं लगा छोड़ दिए, फिर अच्छा नहीं लगा छोड़ दिए, हफ्तों छोड़ दिए क्योंकि अच्छा नहीं लगा। फिर उस जिक्र का फायदा हमें नहीं मिलता है, उस जिक्र से हम अपने आप को सुकून नहीं दिला सकते। अगर सुकून दिलाना है तो हमें करना क्या है? पाबंदी करनी है, थोड़ा ही कुरान की तिलावत करनी है, थोड़ा सा, कुछ एक पारा, आधा पारा, एक रुकू, एक पेज, एक सफा, आधा सफा, कुछ भी करते हैं रोजाना कीजिए। रोजाना मामूल बनाइए कि रोजाना करना है, रोजाना करना है, रोज पढ़ना है। अज़कार पढ़े सुबह शाम के, रोज पढ़ने हैं। नमाज के बाद के अज़कार पढ़ने, रोज पढ़ने हैं। आयतुल कुर्सी पढ़ने, रोज पढ़ने हैं। मामूल बना करके पढ़ना है, कंटिन्यू करना है, तब जाकर के उसका फायदा हमें हासिल होगा। अगर हमने कभी किया और कभी नहीं किया तो इसका मतलब यह हुआ कि हमने इसको अहमियत नहीं दी, इसका जो मकाम और मर्तबा है उसको हमने समझा नहीं है। बस हम जो ही वक्त मिला तो किया, नहीं मिला तो नहीं किया, याद आया तो किया, नहीं आया तो नहीं किया, एहतिमाम के साथ नहीं किया, तब जाकर के उसका फायदा हमें हासिल नहीं होगा। फायदा हासिल करना है तो दवाम बरतनी है, मुसलसल लगातार और कंटिन्यूस अमल को करना है। इसी तरीके से गैर मसनून अज़कार, ऐसे अज़कार पढ़ते हैं जो मसनून नहीं, हदीस से साबित नहीं है, सही हदीस से वो दुआएं, वो अज़कार साबित नहीं है, इन दुआओं को पढ़ने में ज़्यादा मशगूल होते हैं। ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं, वहाँ दुआएं वगैरह खोजते हैं और सुनते और तलाश करते हैं, और वहाँ पर बहुत सी ऐसी दुआएं और ऐसे अज़कार आपको बताए जाते हैं जो गैर मसनून होते हैं, जो बनाए हुए होते हैं, जिसका हदीस से कोई ताल्लुक नहीं होता है। तो उन अज़कार को, उन दुआओं को पढ़ने से उतना फायदा नहीं होगा, दिल को सुकून हासिल नहीं होगा। वो अल्फाज जो नबी अलैहिस्सलाम की ज़बान से निकले हुए हैं वो जामी अल्फाज हैं, वो बहुत सारे मानी रखते हैं और वो अल्फाज बाबरकत हैं। इसलिए अगर हम अज़कार पढ़ते हैं, दुआएं करते हैं, तो उन्हीं अज़कार को अपनाएं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से निकले हुए हैं, तो उसमें हमें फायदा होगा। इसी तरीके से एक चीज है बेयकीनी, अदम तवक्कुल। हमें तवक्कुल नहीं होता, हमें भरोसा नहीं होता, हमें यकीन नहीं होता कि हमने कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ करके दम तो कर लिया है, पता नहीं होगा या नहीं होगा, ठीक होगा या नहीं होगा, उससे दूर होगा या नहीं होगा, यकीन नहीं है,
भरोसा नहीं है, ऐसे दम तो करा लिए हैं, बाकी दवा तो करनी पड़ेगी, दम तो करा लिए हो गया तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। यकीन कीजिए, भरोसा कीजिए, तवक्कुल कीजिए अल्लाह के कलाम पर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में ये दो सूरतें दी हैं, मुअव्विज़तैन कहा जाता है, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। इन दो सूरतों को पढ़ करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दम किया करते थे। तो यकीनी चीज है, यकीन के साथ दम करना है, यकीन के साथ पढ़ना है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में शिफा रखा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला शिफा देने वाला है तो शिफा देगा, देर सवेर कभी भी, लेकिन देने वाला है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला, उसके अलावा कोई नहीं दे सकता। यकीन करना है, भरोसा करना है। हमने शाम के वक्त अज़कार पढ़ लिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सैयदुल इस्तिग़फ़ार के बारे में आपने बयान फरमाया कि जिस शख्स ने सैयदुल इस्तिग़फ़ार को शाम के वक्त यकीन के साथ पढ़ा, भरोसा करते हुए अल्लाह पर यकीन कर कर पढ़ा, सुबह तक अगर वो इंतकाल कर जाता है, मर जाता है, तो वो शख्स जन्नती है। सुबह को यकीन के साथ पढ़ा, शाम तक इंतकाल कर जाता है, तो वो शख्स जन्नती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यकीन के साथ पढ़ना है। अब हमने पढ़ा तो है, लेकिन हमारे दिल में यकीन नहीं है कि अगर मर गया तो जन्नती होगा या नहीं होगा, क्योंकि हमारे दिलों में बहुत सारे खोट हैं, बहुत सारी बुराइयां, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी हम अपने दिल में इस बात को यकीन के साथ नहीं कहते और यकीन के साथ नहीं पढ़ते कि अगर ऐसा हो गया तो जन्नती है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। बहुत सारे गुनाह हैं, क्या होगा, पकड़ लिए जाएंगे और कुछ होगा। यकीन कीजिए, भरोसा कीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुबह शाम 3 मरतबा बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवा समीउल अलीम किसी ने पढ़ लिया सुबह 3 मरतबा, शाम 3 मरतबा, तो उसे कोई चीज नुकसान नहीं पहुंचा सकती, न जमीन की न आसमान की कोई चीज नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये यकीन होना चाहिए, ये अल्लाह पर भरोसा होना चाहिए, इन कलिमात पर यकीन करने की जरूरत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात बयान फरमाई उस पर यकीन होनी चाहिए। यकीन होगा, भरोसा होगा तो उसका असर हमें दिखेगा, नहीं होगा तो नहीं दिखेगा, क्योंकि हमने उस पर यकीन ही नहीं किया, तवक्कुल ही नहीं है हमारा, भरोसा ही नहीं। जब हम उस पर भरोसा ही नहीं करते, उसको अहमियत ही नहीं देते, तो उसका असर हमें कहाँ दिखेगा, नहीं दिखेगा। तो हमारे अज़कार का बेअसर होने की एक वजह यकीन ना होना भी है। इसी तरीके से हमारे अंदर जो गुनाह हैं, जो बुराइयां हैं, जो चीजें हैं, जिन चीजों से हमें बचने की जरूरत है, उन चीजों से हम बचते नहीं। जिन चीजों से हमें दूर रहने की जरूरत है, उन चीजों से हम दूर नहीं रहते, जिस बिना पर हमारे अज़कार हमें फायदा नहीं पहुंचाते। हमारे अज़कार को, हमारे पढ़े हुए अज़कार से हमें फायदा हासिल करना है, तो हमें उसी तरीके से यकीन के साथ, पाबंदी के साथ और उनके मानी की तरफ गौर कर कर पढ़ना है। कुरान भी पढ़ेंगे तो मानी की तरफ तवज्जो देंगे, ध्यान देंगे। नमाज में भी अगर कुरान पढ़ते हैं या ऐसे भी कुरान पढ़ते हैं तो उनके अल्फाज पर गौर कीजिए, मानी को सोचिए, समझिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन आयात में क्या फरमाया है। अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे, इस तरीके से कुरान पर गौर करेंगे, तो आप जिस तरीके से गौर करेंगे उस तरीके से आप उसके अंदर डूब जाएंगे, और जब आप उसके अंदर डूब जाएंगे तो आपका डूबना ही उससे मोहब्बत करना है। जब आप उस चीज से मोहब्बत करने लगेंगे तो यकीनन ये अज़कार, ये आपका कुरान पढ़ना या आपकी कुरान की तिलावत आपको फायदा देगी, आपके दिल के सुकून का बाइस बन जाएगी। इसलिए बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, हमें ये इस बात को याद रखनी है कि हम अज़कार बहुत पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत बहुत करते हैं, दुआएं बहुत पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद बेअसर है। तो असर लाने के लिए इन जो 8 वजूहात बताए गए हैं, 8 बातें बताई गई हैं कि अगर ये चीजें नहीं है तो असरदार नहीं है, इसलिए इन चीजों को हमें लाने की जरूरत है, तब जाकर के हमारे अज़कार असरदार बनेंगे।